دوبارہ لاک ڈاؤن، خارجی سے امکان قرار، پاکستان مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر فورس ٹڈی دل کے خلاف انتظامیہ کی مدد اور کلین گرین مہم کا حصہ بنے گی۔ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق معلومات کے علاوہ 120 پر عمل درآمد کرانا ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پاکستان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان محمد صادق کی ملاقات۔ افغان امن عمل سمیت خطے کے امن و استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ افغانستان میں دیرپا امن و استحکام پورے خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ پاک فوج نے ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ بھارتی کوڈ کاپٹر پاکستانی حدود میں 500 میٹر اندر آ گیا تھا۔ کوڈ کاپٹر کو LOC کے خنجر سیکٹر میں گرایا گیا۔ پاک فوج نے رواں سال 8واں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ DGI SPR ملک میں کورونا وائرس سے اموات اور کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ ایک دن میں 4734 نئے کیسز کی تصدیق، مجموعی تعداد 93,983 ہو گئی۔ 97 افراد جان کی بازی ہار گئے، 32,581 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 68,44,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4 لاکھ کے قریب مریض جان کی باقی ہار گئے، 33,48,000 سے زیادہ مریض صحت یاب۔ امریکہ میں 1,11,000 سے زیادہ ہلاک، 19,66,000 کے قریب متاثر۔ بھارت سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں 6 نمبر پر آ گیا، 6,649 افراد ہلاک، 2,36,000 سے زیادہ متاثر۔ امریکہ کے بعد میکسیکو میں بھی ایک مزدور کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ بڑی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کی گاڑیاں نظر آتش۔ میکسیکو شہر میں امریکی سفارت خانے پر بھی مظاہرین کا پتھراؤ۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی نسل پرستی کے خلاف نکالے جانے والی ریلی میں شرکت۔ جسٹن ٹروڈو ہزاروں مظاہرین کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھے۔ مظاہرین نے یکجہتی کے اظہار پر کینیڈین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان ایران کے سرحدی شہر تفتان میں 2 طرفہ دوستانہ تجارتی گیٹ 0 پوائنٹ کو 2 ہفتے کی بندش کے بعد تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ 0 پوائنٹ گیٹ کو ایرانی سرحدی حکام نے عید کی تعطیلات کی وجہ سے بند کیا تھا۔ تنازع کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری۔ سید علی گیلانی کی ساری زندگی کشمیری عوام اور آزادی پسند قیادت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا مجلس شورا کے اجلاس میں پارٹی چیئرمین سید علی گیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعلان۔ سینتالیس متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور آپریشن۔ 2.5 کروڑ ہیکٹر رقبے کا سروے، 5,15,600 ہیکٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن۔
محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں رواں سال مانسون سیزن کے دوران اچھی بارشوں کی پیشگوئی. اس سال مجموعی طور پر 10% زیادہ بارشوں کا امکان ہے. کشمیر اور صوبہ سندھ میں بھی معمول سے 20% زیادہ بارشیں متوقع ہیں. عمر اکمل سزا کیس. سپریم کورٹ کے سابق جج 11 جون کو کیس کی سماعت کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے بطور آزاد منصف فریقین پی سی بی اور عمر اکمل کو نوٹسز جاری کر دیے. اور تماشائیوں کے بغیر جرمن فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری. فرائبرگ کی بوروسیا میونشن گلاڈباخ کو اب تک شکست. 1 گول سے ہرا دیا. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول نیلس پیٹرسن نے کیا. مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. مجھے میرا عکس دکھانے والے آئے ہیں. میرے ارطغرل کا دیدار. اس نے اللہ کی کتاب پر شرک کر کے مسلمانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیا. ظلم کا خاتمہ اور حق کی فتح یقینی ہے. ہم ہاں تسلیم نہیں کریں گے. ناصر اپنی فوج لے کر کل تمہارے قبیلے کی طرف بڑھے گا. وہ تمہارا قبیلہ بھی جلا دے گا. تم جیسے 10 جنگجو اگر میرے پاس ہوتے تو قدس کب کا ہمارا ہو چکا ہوتا. اسے وہاں سے باحفاظت نکالنا ہم پیدا کریں. خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال لو ارطغرل. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سمین نرانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ لاک ڈاؤن کو خارج امکان قرار دیا ہے. کورونا ٹائیگر فورس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک اب مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. کاروبار بند کرنے سے ٹیکس محاصل میں 800 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. تفصیل ریاض ورکی سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کا امیر ترین ملک امریکہ بھی غیر معینہ مدت تک لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا اور وہاں لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر کھانا وصول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پہلے ہی مشکل معاشی صورتحال کا سامنا تھا. ایسی صورت میں مزید لاک ڈاؤن کی گنجائش نہیں ہے. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. ہمیں اب تک 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی. جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا. 5000 ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان مسلمان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں رمضان کے دوران تراویح کی اجازت دی گئی. علماء نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور مساجد سے کورونا کے پھیلاؤ کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. SOPs کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. برازیل ساؤتھ امریکہ کے اندر ملک ہے, ادھر ایک دن کے اندر 1350 لوگوں کی اموات ہوئی. امریکہ میں 2000 سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوتیاں ہوئی. تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچ گئے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے رضاکاروں کی مدد لی گئی مگر پاکستان کے 10 لاکھ رضاکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ہم آپ کو باقاعدگی سے جو ہماری CCOP جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں, ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں, کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, وائرس کدھر پھیل رہی ہے, تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے.
हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन ये इस मुश्किल वक्त में होगी कि आप लोगों में शऊर पैदा करें, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं शऊर पैदा करने में तो उससे होगा क्या? ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि टाइगर फोर्स मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम में भी इंतजामिया से ताउन करेगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तान के ख़ुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की है। इस मुलाकात में अफगान अमन अमल समेत खित्ते के अमन इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा अमन इस्तेहकाम पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी को निभाते हुए खुलूस नीयत के साथ अफगान अमन अमल में मुसालिहाना किरदार अदा किया, जिसे आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा ने मोहम्मद सादिक को खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान तकर्री पर मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि आपकी इस अहम मनसब पर तैनाती से पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 500 मीटर अंदर आ गया था। क्वाडकॉप्टर को LOC के खुंजर सेक्टर में गिराया गया है। पाक फौज ने रवां साल 8वां भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,734 केसेस का इजाफा हुआ और 97 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 93,983 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1,935 है, जबकि 32,581 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 4,323, पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलोचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897 और आज़ाद कश्मीर में 331 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। महदूद रहें, महफूज रहें। मुल्क भर में 747 अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सहूलियात दस्तियाब हैं और 5,060 मरीज जेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना को शिकस्त देकर शिफायाब होने वाले अफराद का कहना है कि वबा की तकलीफ से बचने का मुअस्सर तरीका एहतियात है। तफसील आसिम रिजवान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क भर में अब तक 93,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की तादाद 59,000 से ज्यादा है। शिफायाब अफराद की तादाद 32,581 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर अब तक 12,459 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 541 अफराद इस जानलेवा वबा के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौटने वाले अफराद का कहना है कि एहतियात के जरिए इस वबा से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज रखी जा सकती हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वक्तन जो SOPs जारी होती थी, उसके मुताबिक वो क्वारंटाइन का वक्त मैंने गुजारा और उसके बाद अल्लाह के फजल से फिर मैं आफ्टर 16 डेज मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। खुदा जो WHO, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत सेहत और महकमा सेहत जो हदायत आपको दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, अपने लिए, अपने प्यारों की खैर खैरियत के लिए। इसको मजाक करार देने वाले को हमने बताया भी कि ये मजाक नहीं है
उनको यही बात बताते बताते हम भी इसी कोरोना वबा का शिकार हो गए। बाजारों में बिला वजह निकलने से परहेज करें, क्योंकि जितना भीड़ भाड़ में हम जाएंगे इस बीमारी को हम मजीद तकवीत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब होने वाले तिब्बी माहिरीन का कहना है कि समाजी दूरी कोरोना के खिलाफ मुस्तर हथियार है। अब तो चूंकि लॉकडाउन भी खुल चुके हैं, हुकूमत ने अवाम को इजाज़त दे दी है कि अपनी रोज़मर्रा मामूलात को सही तरीके से करें, तो इस आसानी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये करेंगे कि तमाम हिफाजती तदाबीर जिसमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, अगर खांसी हो या ज़ुकाम हो और बंदे को छींक आए तो वो अपने मुंह को ढांप के रखे। इसको सीरियसली लें, ये एक हकीकत है। कोरोना पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना का कोई हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई है, ना कोई इसकी वैक्सीन है। तो सबसे बेहतर हमारे पास हथियार है, जो हमें करना चाहिए वो है एहतियात। हुकूमत ने रोजगार की फराहमी और मईशत के पहिए को रवा रखने के लिए सियाहत समेत बाद शोबों को कारोबार के लिए खोल दिया है। ताहम जरूरत इस अम्र की है कि इंफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हदायत पर मनो अमल किया जाए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और बैनुल अक़वामी मंजरनामे का अहवाल, दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 68,44,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 4 लाख के करीब जान की बाजी हार गए हैं। 33,35,000 से जायद अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इटली में ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों की शरह कम हो गई है, जहां गुज़िश्ता रोज 85 अफराद हलाक हुए और इससे पहले जुमेरात को 88 अफराद हलाक हुए थे। तहाँ मुल्क में ताज़ा मुसद्दिका केसेस की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है, जो जुमेरात को 177 के मुकाबले में जुमे को 518 हो गए हैं। इनमें 402 केसेस इटली के इलाके शिमाली लोम्बार्डे में रिकॉर्ड हुए हैं, जो हलाकतों के हवाले से इटली का सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है। इटली में अब तक 33,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और अगर दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क अमरीका में अब तक 1,11,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 19,66,000 के करीब अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में ब्राजील का दूसरा नंबर है, जहां अब तक 35,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 6,40,000 से ज्यादा जानलेवा वायरस से मुतासिर हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां 4,49,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक और 5,500 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन चौथे नंबर पर है, जहां 27,000 से ज्यादा हलाक, जबकि 2,88,000 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में बरतानिया 5वें नंबर पर है, जहां 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 2,83,000 से तजावुज़ कर गई है। भारत सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 9,471 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। भारत में मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 2,36,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अब तक 6,649 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका के बाद मैक्सिको में भी एक शख्स की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े हैं और मुबैना तौर पर पुलिस ने एक वर्कर को मास्क न पहनने पर गिरफ्तार किया था, जो पुलिस की हिरासत में ही दम तोड़ गया। मैक्सिको के दूसरे बड़े शहर में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद वर्कर की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई और हुकाम से जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए, शीशे तोड़ने के बाद उसको आग लगा दी। मास्क पहने मुजाहिरीन ने मैक्सिको शहर में इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने पर भी पथराव किया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में भी स्याह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की स्याह फॉर्म पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद हंगामों का सिलसिला जारी है। उधर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हजारों अफराद की जानिब से नस्ल परस्ती के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली में शिरकत करके सबको हैरान कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने निकाली जाने वाली रैली में जस्टिन ट्रूडो ने काले रंग का मास्क पहना हुआ था। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली में दूसरे मुजाहिरीन के साथ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म भी
घुटने टेक कर बैठ गए, जिस पर मुजाहिरीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले सिया कौम शहरी के हक में टोरंटो समेत कनाडा के कई शहरों में मुजाहिरे किए गए। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें हमने शामिल की। एक बार फिर से बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना की जो सूरत हाल है उस हवाले से, और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो टाइगर वर्कर्स हैं, टाइगर फोर्स है, उनसे खिताब किया गया और उनसे कहा कि अब मुल्क में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी अब टाइगर फोर्स पर आयद होगी और टाइगर फोर्स को टास्क दिए जाएंगे, उन्हें कार्ड्स पहुंचाए जाएंगे ताकि वो अपने अपने इलाकों का सर्वे करें और अपने अपने इलाकों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और खासतौर पर वो इलाके जहां पर कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे वहां पर ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो टाइगर फोर्स को अदा करना पड़ेगी। इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, कितना रश है और जो मार्केट्स हैं उनके खोलने के बंद करने की टाइमिंग्स क्या रखी गई हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हॉल रोड पर मौजूद हैं। एक मशहूर जगह है लाहौर की और मसरूफ तरीन इलाका है हॉल रोड। नवीद, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त आप अपने आसपास क्या मनासिर देख रहे हैं, अवाम का रवैया कैसा है और क्या SOPs पर अमल हो रहा है, और मार्केट्स की टाइमिंग के हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है और हुकूमती जो अहकामात हैं उनके मुताबिक जो कारोबारी मराकज़ हैं, मार्केट हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं वो आज बंद रखने का आज पहला रोज़ है, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खुले रहते हैं जबकि 2 दिन कारोबारी मराकज़ बंद रहते हैं। आज बंद रहने का पहला रोज़ है और तमाम जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वो आज बंद हैं। ताहम जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, करियाना स्टोर्स हैं और दूसरी जो दुकानें हैं ताहम वो खुली हैं, जहां पर बुनियादी असूलों के मुताबिक जो है खरीदारी जारी है। अगर बात की जाए औकातकार की तो सुबह 9 से 7 बजे तक ये जो है तमाम दुकानें, करियाना स्टोर हैं वो खुले रहेंगे, उसके बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी इस बात पर काफ़ी नज़र आते हैं, अमल करते हुए नज़र आते हैं। लोगों का रश इंतहाई कम है, आज मामूल के मुताबिक बिल्कुल कम है, क्योंकि आज लॉकडाउन का पहला रोज़ है, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन बंद रहता है तो आज हफ्ता है और हफ्ते में आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन के बाइस तमाम दुकानें, जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं। जी नवीद, जैसा कि आप बता रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र आज मार्केट्स को बंद किया गया है। SOPs के हवाले से बताइएगा, अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मार्केट्स में किस तरह का रुझान देखा जा रहा है और शहरी क्या SOPs को फॉलो कर रहे हैं, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी आभास से परेशान नजर आते हैं और SOPs पर बात की जाए तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। अगर मास्क की बात की जाए कि शहर में मास्क लाजमी करार दिया गया था कि नो मास्क नो सर्विस, तो इस हवाले से देखा जाए तो शहरियों के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी इस पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं और मास्क जो है वो ज़रूरी करार दे रहे हैं ताकि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए और जो कोरोना वायरस जैसा जो मूजी मर्ज है इस वबा से छुटकारा दिलाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया नवीद हयात, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, एक मसरूफ शाहरा हॉल रोड, और वहां पर उन्होंने बताया कि आज स्मार्ट लॉकडाउन के तहत चूंकि हफ्ता इतवार को मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया था तो इसके तहत हमने ये देखा कि बहुत ही कम ट्रैफिक और बहुत कम तादाद में शहरी बाहर थे और SOPs के हवाले से भी उनका ये कहना था कि जो शहरी हैं वो SOPs पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में ईरान से मुंसलिक 2 तरफा दोस्ताना तजारती गेट 0 पॉइंट को 2 हफ्ते की बंदिश के बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है। 0 पॉइंट गेट को ईरानी सरहदी हुकाम ने ईद की तातीलात की वजह से बंद कर दिया था, जो आज बाकायदा तौर पर तजारती सरगर्मियों के लिए ईरान ने खोल दिया। लेवीज हुकाम के मुताबिक 0 पॉइंट हफ्ते में 3 दिन खुला रहेगा और सिर्फ ईरान की तरफ से तजारती सरगर्मियां होंगी और इसके अलावा ईरान से लाए गए सामान की बाकायदा स्प्रे भी होगी। 0 पॉइंट में काम करने वाले कुलियों को असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान की जानिब से मास्क भी फराहम किए गए हैं। 0 पॉइंट गेट खोलने से मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
पाकिस्तान कौमी एयरलाइन PIA की परवाज पेरिस से 120 मुसाफिरों को लेकर लाहौर रवाना हो गई है। PIA की इस परवाज से इस्लामाबाद से 420 मुसाफिर पेरिस पहुंचे हैं और फ्रांस से दिगर एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी आज से बहाल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक 12 जून तक पाकिस्तान से PIA की परवाजें शेड्यूल के मुताबिक चलने का इम्कान है। नाज़रीन, अब लाहौर से कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हमें आगाह करेंगे नवीद हयात। नवीद हयात, बताइएगा कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। नवीद हयात से हम बात कर चुके हैं, लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी बात कर ली है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बायस बहुत सारे मामूलात ज़िंदगी जहां मुतासिर हुए हैं, तो उसके साथ साथ थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के एहतियात में भी खातिर ख्वाह कमी आई है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बर्ड थैलेसीमिया सोसाइटी रावलपिंडी में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और सूरत हाल जानते हैं कि इस बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए कौन कौन से मुश्किलात हैं। हसन, हमें बताइएगा कि कोरोना वायरस की वबा में खून की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है, थैलेसीमिया के मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे मुल्क में जो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, बिलखसूस जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों का आना जाना कम हुआ है, उसी तनाजुर में जो खून के एहतियात हैं उसके अंदर भी खातिर ख्वाह कमी आई है। और थैलेसीमिया के बच्चे जो ये अतिया के थ्रू मिलने वाला खून है, इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो उनकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे साथ जो यहाँ पर रावलपिंडी थैलेसीमिया जो ये सोसाइटी है जिसके वार्ड में सब मैं मौजूद हूँ, इनके चीफ एडमिन ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, अली फरहान साहब। इनसे बात करते हैं। सर, बताएं कि आप लोगों की इस वक्त जो खून की दस्तयाबी की सूरत हाल है वो किस हद तक मुतासिर हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि हमारी मुल्क इस वक्त जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से शिकार है वबा का, और हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और जैसा कि ईद अभी गुजरी है और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना था, तो हमारे यहाँ एकदम जो इन बच्चों के लिए तकरीबन 2200 से 2300 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं, जिनको हम गुज़श्ता 25 बरस से मुफ्त सर्विसेज फराम कर रहे हैं, जिसमें ब्लड एक अहम उसकी आंसर है जिसको हमने फराम करना होता है। उसकी दस्तयाबी के लिए हमें अपने डोनर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और वो आते हैं और हम कैंप्स लगाते हैं। जैसा कि कैंप्स इस वक्त पूरे मुल्क में जो है इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और कंपनीज भी बंद हैं और दूसरे इश्यूज भी चल रहे हैं, तो हमें गैदरिंग की वजह से इस किल्लत का सामना करना पड़ा है। तो मैं मशकूर हूँ आपकी तवस्सुल से PTV टीम का भी कि हमारी जो आवाज़ है वो कौम तक पहुँचाई जाए, और इसके लिए जैसे पहले भी हमारे साथ डोनर्स कोऑपरेट करते हैं और हमारे बच्चों के लिए जो उनकी ज़िंदगी का समा है, जो हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, उसके लिए ताउन करें। ये हमारे साथ यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोहरा भी मौजूद हैं। जरा बच्चों की जो मेडिकल कंडीशंस है, थोड़ा सा इस मर्ज के हवाले से भी उनसे मालूमात लेते हैं। मैडम जरा डॉक्टर साहब प्लीज आइएगा, ट्रेन में आए। ये बताइएगा कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, सर थोड़ा सा इस मर्ज के हवाले से बताएं कि इस मर्ज से बच्चे क्यों इफेक्ट होते हैं? जी, ये जेनेटिक मर्ज है, मौरूसी है, और दोनों पेरेंट्स के साथ दोनों का माइनर और माइनर की जब शादी होती है तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है। इसको 4 मंथ्स में ही डायग्नोज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इसको हर महीने ब्लड लगना है, आफ्टर एवरी 20 to 25 डेज उसको ब्लड लगना है, और ब्लड में से सिर्फ रेड सेल्स लगने हैं। तो ब्लड अगर उसको ना लगेगा तो फिर वो वीक और एनीमिक होता जाएगा एंड उसकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्योंकि आप लोगों के खून की किल्लत से यहाँ पर एहतियात का इशू है, तो इसको कवर अप करने के लिए आप लोगों ने कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाई है कि इन हालात में कैसे आप जो है वो खून को की जो दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे? जी, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 2200 रजिस्ट्रेशंस हैं ये थैलेसीमिया बच्चे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और 450 हर मंथ यहाँ पे ब्लड लगवाते हैं, 450 बच्चे। उसके लिए हमें हर वक्त 300 to 400 ब्लड पर मंथ हमें चाहिए। और पहले तो कैंप्स लगते थे, अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कैंप्स ज़रा मुश्किल हो गया है, और बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक तो हमने अपने सेंटर में इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि वॉक इन डोनेशंस एंड डेडिकेटेड डोनेशंस कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग कंप्लीट अपना सेटअप उसको क्लीन रखा है, उसको डिसइंफेक्ट करते रहते हैं, जो डोनर है वो भी सेफ होता है और एवरीबडी इज सेफ। और ब्लड लेने के बाद फिर उसके हम 4-5 टेस्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और उसमें से रेड सेल्स हम ले लेते हैं और प्लाज्मा हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बहुत जो माहिरीन है तभी वो ये बात करते हैं कि खून देना एक अच्छी आदत है, थोड़ा सा बताएं कि खून का अतिया देने के फवायद क्या क्या हैं? जी,
इसमें हम 18 इयर्स से अबव बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं ब्लड, और जो अपर लिमिट है वो 60-70, बल्कि वैसे उन्होंने ख़त्म ही कर दिया अपर लिमिट, कोई भी ब्लड दे सकता है। और ब्लड देने के साथ आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है, और बहुत थोड़ा सा ब्लड लेते हैं हम, 300 to 450 ml तक लेते हैं ब्लड, और उसमें बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, और आफ्टर एवरी 3 months आपका ब्लड उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है और आप हेल्दी और तो आपने सुना कि खून का अतिया देना एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है, आपको जो जिस किस्म के वायरसेस बैक्टीरिया जो आपके ऊपर हमलावर होते हैं उसके खिलाफ आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ वो चीज़ मजबूत होती है। तो आए ये इस वबा के खिलाफ जहाँ पर हम जंग में हैं, तो मैं PTV के तवस्सुत से अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि इन बच्चों को जो डिपेंड कर रहे हैं, जिनका सर्वाइवल इस चीज़ के ऊपर है कि उनको महीने में एक दफ़ा खून की बोतल चाहिए, तो आए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खून का अतिया दे ताकि उनकी जो खून की ज़रूरियात है उसको पूरा किया जा सके। मौजूद थे, वहां मौजूद अमले से उन्होंने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन, फौजी मुहासरे और मवासिलात पर पाबंदी को 10 माह मुकम्मल हो गए हैं। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 10 माह में भारतीय काबिज फौज ने कश्मीरी लोगों के तमाम हुकूक की खिलाफ वर्जी की और उन्हें दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। ऐसे हालात में जब आलमी बरादरी कोरोना वायरस के खिलाफ नबर्द आजमा है और भारत मकबूजा कश्मीर के जमीनी हक़ाइक़ तब्दील करने में मसरूफ है, भारतीय काबिज फौज मावराए अदालत कत्ल और जाली मुकाबलों के जरिए कश्मीरी नौजवानों को बर्बरियत का निशाना बना रही है। भारत को ये समझ लेना चाहिए कि पिछली 7 दहाइयों में कश्मीरियों को मजालिम के जरिए दबाने में नाकाम रहा है और आइंदा भी रहेगा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और भारत को इसके जराइम का जिम्मेदार ठहराएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का अयादा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी की हिदायत पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मजलिस शोरा का अहम इजलास जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद की सदारत में श्रीनगर में हुआ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी नजरबंदी के बायस इजलास में शिरकत न कर सके। इजलास में मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की गई है कि वो भारतीय मुजालिम का नोटिस लें। इजलास में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अपने चेयरमैन सैयद अली गिलानी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी की जिंदगी जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरी अवाम और उनकी आज़ादी पसंद क़यादत के लिए मशअल राह है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मजबूत बुनियादों पर कायम है, लिहाजा नाकामी उन अनासर का मुक़द्दर रहे जो अपने ज़ाती मफादात के लिए सैयद अली गिलानी की अलालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इजलास में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के इजलास में किए गए फैसलों की मुकम्मल हिमायत और मोहम्मद हुसैन खतीब की कायम मकाम कन्वीनर मुंतखब होने की तौसीक की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम भारत के मुजालिम और इलाकाई अमन के नुक़सान से एक वेबिनार सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान में चीनी लॉ फर्म के बानी जेंगयोंग इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सरबरा मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद, यासिर रहमान और दूसरे मुकर्ररीन ने हालिया चीन भारत कशीदगी, कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली और भारत की हिंदू रियासत में तब्दीली के मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत इलाकाई इस्तेहकाम को दांव पर लगा रहा है।
नाज़रीन, मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फिजाई स्प्रे किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 47 अजला मुतासिर हुए हैं और बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3, सिंध के 2 अजला मुतासिर हैं। इस हवाले से तफसील मालूम करते हैं और बात करने के लिए महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नवीद असमत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मौजूदा जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। मुल्क भर में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है और हवाई जहाजों हेलीकॉप्टर्स की मदद से फिजाई स्प्रे भी किया जा रहा है उन तमाम इलाकों में, उन तमाम अजला में जो इलाके ज्यादा मुतासिर हैं। और नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 47 अजला मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान के 33 अजला हैं जो मुतासिर हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 2 अजला मुतासिर हैं। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर अली बात कर ली जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी टिड्डी दल के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाइयां जारी हैं। किसानों में आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है। टिड्डी दल का जो सबसे पहला हमला हुआ था फरवरी में, उस वक्त से ही हम देख रहे हैं कि टीमें जो हैं वो मुतासरा अजला में मौजूद हैं और ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। स्प्रे भी किया जा रहा है और किसानों को टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए हिदायत भी दी जा रही हैं और उन्हें अवेयरनेस भी दी जा रही है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा ज़राअत, PDMA, पाक आर्मी, ज़िले इंतजामिया पर मुश्तमिल टीमें इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तफसील जानेंगे अनवर ज़ेब मरवत से। खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के बड़े झुंड अफगानिस्तान से सूबे के 13 अजला, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, देई खान, टांग, लकी मरवत, बनू, करक, कोहाट, अंगूर और अगजई, कोरम, खैबर और पेशावर में दाखिल हुए, जिन्होंने इन अजला में खड़ी फसलों को मुतासर किया। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा के एहलकारों पर मुश्तमिल 80 टीमें, 78 गाड़ियां और ड्रोन समेत मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे मशीनें इन अजला में टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम में हिस्सा ले रही है। 34 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे की सर्विलेंस और 42,000 हेक्टेयर इलाके पर कंट्रोल ऑपरेशन के बाद टिड्डी दल के खात्मे के लिए अब तक 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा मुतासर रकबे पर 22,000 लीटर से ज्यादा जहरों का स्प्रे किया जा चुका है। ये ऑपरेशन तो हमने सबसे पहले 16 फरवरी 2020 से स्टार्ट किया था, जो कि मैच्योर लोकस्ट पर स्टार्ट किया था। जहाँ पर भी निकल आते हैं और बच्चे निकल आते हैं और हमें सर्वेलांस रिपोर्ट मिलती है तो हम उसी जगह पर जाते हैं। टिड्डी दल की एरेडिकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले हमने बलूचिस्तान में काम किया है, सिंध में और पंजाब में, और अभी मैं यहाँ पे डिप्यूट हुआ हूँ। महकमा ज़राअत, PDMA और पाक फौज के बरवक्त इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल से फसलों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। तमाम देई खान में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार डेर इस्माइल खान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ड्रोन के जरिए भी स्प्रे किया जा रहा है। महकमा ज़राअत ने किसानों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन के साथ मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराई है। जो टिड्डी दल के ऑपरेशन जारी है, इसके बारे में महकमा ज़राअत ने हमारे जमीनों पर बहुत ज्यादा स्प्रे किया है। टिड्डी दल के खतरे के पेश नजर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतासरा अजला में सर्विलेंस और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। सूबे में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और सूरत हाल की निगरानी की जा रही है ताकि टिड्डी दल से फसलों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अनवर ज़ेब मरवत, PTV न्यूज, लकी मरवत। नाज़रीन, अनवर ज़ेब मरवत की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जो हमें बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल से बचाव के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क भर में जो अजला मुतासिर हैं वहाँ पर टीमें मौजूद हैं और जैसे ही कोई भी रिपोर्ट आती है कि जिस इलाके में या जिस जगह पर टिड्डी दल का हमला हुआ है तो वहाँ पर फौरी तौर पर टीमें पहुँच जाती हैं। बिल्कुल। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद असमत साहब। नवीद असमत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, आपसे जानना यह है कि अब तक इस हवाले से क्या पेशरफ सामने आ सकी है? सर, जहाँ तक पंजाब में टिड्डी दल का तल्लक है, इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 3-4 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पंजाब टिड्डी दल के हमला और इसकी प्रेजेंस से बिल्कुल साफ है। महकमा ज़राअत, PDMA, पाक आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरीन हिकमत अमली और कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा सर्विलेंस और कंट्रोल ऑपरेशन से फसलों को नुकसान से बचा लिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे 24 अजला में जहां कंट्रोल ऑपरेशन जारी था वहां पर 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबा की मौसर सर्विस की जा चुकी है और 80,000 लीटर से जायद जहरों का स्प्रे किया जा चुका है। और टिड्डी दल की मौसर निगरानी के लिए आपको पहले मैंने शायद बताया था कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से हेलीकॉप्टर वक्त कर दिया गया अपना जाती।
और 20,000 लीटर से ज्यादा जहरें हमारे पास इस वक्त भी स्टॉक में मौजूद हैं और 2000 जदीद स्प्रे मशीनें हमारे पास पीडीएम में खरीद के फील्ड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के को फराम की हैं ऑपरेशन एक्टिविटीज के लिए और 135 जदीद यूएलवी मशीनें वो भी खरीद ली गई हैं और महकमा ज़राअत के 3000 से ज्यादा एहलकार व अफसरान टिड्डी दल की सर्वेलेंस और कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा महकमा ज़राअत की 328 गाड़ियां भी कंट्रोल ऑपरेशन में वो जो है ना वो जो मुहिम है उसमें हिस्सा ले रही हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर तमाम डीसी साहबान ने मौजूदा लेवल को लोकल कंट्रोल कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इन कमेटियों की ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी और जो मास्टर ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग आज चल रही है। हुकूमत पंजाब ने हंगामी बुनियादों पर हुकूमत पंजाब ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए 1 अरब रुपए की वक्ती रकम भी जारी कर दी है और वजीर ज़राअत पंजाब SNBR साहब, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में भी मुतासरा इलाकों के दौरे कर रहे हैं और मौका पर जारी तमाम बहुत शुक्रिया नवीद असमत साहब, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है, इसके अलावा जदीद स्प्रे मशीनें भी फील्ड में मौजूद हैं। टीमें जो हैं वो बर वक्त पहुंचती हैं मुतासरा इलाकों का सर्वे और सर्विलेंस के लिए और ट्रीट किया जाता है मुतासरा इलाकों को और इसके अलावा महकमा ज़राअत की जो गाड़ियां हैं वो भी इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। जी आगे बढ़ते हैं माहौलियाती तब्दीली के बारे में। वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अमीन असलम और वज़ीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल ने कहा है कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें शजरकारी पर भरपूर तवज्जो देना होगी। दुनिया जब इस कोविड से ऐसा ऐसा बाहर आ रही है तो एक ग्रीन रिकवरी की तरफ हमें जाना चाहिए और हमारी हुकूमत ने इस चीज़ का तहिया भी किया और अमली तौर पे भी करके दिखाया है कि हम इंशाल्लाह इस ग्रीन रिकवरी में बिलीव करते हैं। ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ये अनाउंस किया कि हमें ग्रीन स्टिमुलस दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे ना सिर्फ बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिलें बल्कि हम अपने माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इट्स टाइम फॉर नेचर, लेट्स रिवाइव के हम दोबारा से प्लांटेशन की तरफ जाएं। बिलियन ट्री सुनामी बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है। इस्लामाबाद में और इवन पाकिस्तान के अंदर आप लोग शॉपिंग बैग का जो इस्तेमाल है उसको बिल्कुल आप लोग खत्म कर दें। हमने अपनी बिहेवियर चेंज हमने लेकर आना है कि हमने नेचर से, दरख्तों से, अपने नेचुरल रिसोर्स से मोहब्बत करनी है। वो बेसिकली पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में अस्पतालों में मरीजों को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। फैसलाबाद में अब तक 8,504 मुश्तबा मरीजों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 5,405 अफराद की रिपोर्ट्स नेगेटिव, 1,378 की पॉजिटिव जबकि 1,721 अफराद की रिपोर्ट्स का इंतजार है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के 102 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं, जिन्हें करंटीना कर दिया गया है। अलाइट और सिविल समेत शहर के तमाम बड़े अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए वार्ड मखसूस करके इनका इलाज किया जा रहा है, जबकि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को मुकम्मल तौर पर कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है। कोरोना से मुतासरा मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुसलसल फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स, हमारी स्टाफ नर्सेज दिन रात काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट दिन रात काम कर रही है लोग। लेकिन ये कि अपना हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि लोगों से कि वो एहतियात करें। जिले हुकूमत की तरफ से पारस और जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के करंटीना सेंटर्स में बैरून मुल्क से आए हुए मुसाफिरों की निगहदाश्त की जा रही है। फैसलाबाद में कोरोना की वजह से अब तक 51 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 127 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवाम की तरफ से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद इस वबा से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद।
मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवां साल मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिशों की पेशगोई कर दी है और इस साल मजमूई तौर पर 10% से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम खित्ता पोटोहार समेत पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध के अजला में भी बास मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बारिश का इम्कान है। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 2020-21 में खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अनम अमीन और उमैमा सुहेल समेत 9 खवातीन क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम कैटेगरीज के मुआवजों में इजाफे के साथ साथ डोमेस्टिक इवेंट्स के मुआवजों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया है। नौजवान क्रिकेटर्स को खेल की तरफ रागिब करने के लिए एक नई इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है। चीफ सिलेक्टर कौमी खवातीन क्रिकेट उरूज मुमताज का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान से कबल सिलेक्शन कमेटी ने तवील मुशावरत की और गुज़श्ता 12 माह के दौरान कौमी खवातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेन क्रिकेट के हेड कोच के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की, जबकि बिस्मा मारूफ कौमी विमेन टीम की कप्तान बरकरार रहेंगी। पीसीबी ने बिस्मा मारूफ को सीजन 2020-21 के लिए कप्तान बरकरार रखने का ऐलान किया है, जबकि हेड कोच इकबाल इमाम को हटाने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जाएगी। हेड कोच के तकर्रुर के लिए इश्तिहार मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। और अब कुछ बात करते हैं उमर अकमल केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर बतौर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर 11 जून को उमर अकमल की जानिब से दायर अपील पर समाअत करेंगे। इस हवाले से दोनों फरीकैन पीसीबी और उमर अकमल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 27 अप्रैल को रिटायर्ड जस्टिस फजले मीरा चौहान ने बतौर चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल 2 मुख्तलिफ मौके पर पीसीबी के एंटी करप्शन कोड की शेख 2.4 की खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर की जानिब से फैसले तक पीसीबी इस मामले पर मजीद तबसरा नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और एमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का ऑनलाइन कोचिंग सेशन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर डेमन फ्लेमिंग ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया और अपने तजुर्बे और मुफीद मशवरों से नवाजा। फ्लेमिंग ने बॉलर्स को फास्ट बॉलिंग के मुख्तलिफ पहलुओं, खासतौर पर कोका बोरा गेंद के सही इस्तेमाल के बारे में बताया। ऑनलाइन लेक्चर में नॉर्दर्न की फर्स्ट, सेकंड टीम और अंडर 19 टीम के फास्ट बॉलर्स मौजूद थे। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स के कीमती तजर्बे और मशवरों से कौमी खिलाड़ियों के खेल में नुमायां बेहतरी आएगी। और अब कुछ बात करते हैं जर्मन फुटबॉल लीग के हवाले से। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदसलीगा अमेरिका में सयाफाम शहरी के जेर हिरासत कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों की हिमायत करने पर खिलाड़ियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन DFB के मुताबिक खिलाड़ी जॉर्ज फ्लूट के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों की हिमायत करने पर आज़ाद हैं। एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मैचेस के दौरान मुजाहिरीन की हिमायत और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाड़ियों अशरफ हाकमी, जादून सांशो, शॉल्के के वेस्टर्न मैककेनी और बोरुसिया मुन्शनग्लैडबाख के मार्कस थर्म के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाजू से महरूम चीन के 13 साला बास्केटबॉल प्लेयर जोंग जी चिंग ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सबको अपना गर्विदा बना लिया है। जोंग जी चिंग ने 5 साल की उम्र में एक हादसे में अपना एक बाजू गंवा बैठे, ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बास्केटबॉल में अपनी शानदार महारत से स्टीफन कैरी और डेमन लिलर्ड समेत NBA सुपरस्टार्स को भी हैरान कर दिया। स्टीफन कैरी ने चीनी सोशल वेबसाइट पर मौजूद अपने फॉलोअर्स पर जोर दिया कि वो मशहूर लड़के को तलाश करने में इनकी मदद करें। जोंग जी चिंग ने ज्यादातर खेल खुद सीखा है और उनकी हैरत अंगेज महारत बरसों की अंतर तरबियत से मुमकिन हो पाई है।
اور اب کچھ بات کرتے ہیں نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے بورڈ آف گورنرز نے کورونا وائرس کے سبب معطل سیزن کو 31 جولائی سے بحال کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ لیگ کے مطابق NBA کی 30 میں سے 22 ٹیموں کے درمیان 8 مقابلے کرائے جائیں گے، جس کے بعد پلے آف فیلڈ میں 16 ٹیمیں پوسٹ سیزن فارمیٹ میں مد مقابل ہوں گی اور بیسٹ آف 7 ٹیم کو فاتح کا تاج پہنایا جائے گا۔ ایونٹ کی بحالی کے حوالے سے ووٹنگ میں 30 میں سے 29 ووٹ بحالی کے حق میں آئے، جبکہ صرف 1 ووٹ مخالفت میں پڑا۔ بورڈ آف گورنرز 12 اکتوبر تک سیزن کو مکمل کرانے کے لیے پر امید ہے۔ ایونٹ کا انعقاد ڈزنی ورلڈ فلوریڈا میں کرایا جائے گا۔ فرانس بھر میں 2 ماہ کی بندش کے بعد جمز کو کھول دیا گیا ہے۔ فرانس میں جمز اور سپورٹس ہالز میں انڈور سپورٹس سرگرمیاں لاک ڈاؤن کے دوران 2 مہینے بند رہیں، تاہم اب سخت حفاظتی اقدامات اور سماجی فاصلے کی بنیاد پر جمز کو کھول دیا گیا ہے۔ فرانسیسی شہر نیس میں جہاں کورونا وائرس انفیکشن کا خطرہ کم ہے، فٹنس سینٹرز، سوئمنگ پولز اور جمنیزیمز کو کھول دیا گیا ہے۔ فٹنس پارک جم میں 2 میں سے 1 ٹریڈ مل کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ہال میں جگہ جگہ سینیٹائزر ڈسپینسر نصب کر دیے گئے ہیں۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمینہ رانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی۔ اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے، پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے۔ یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں، دیوانے جگنو بن کر۔ سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر۔ جھیلیں اس مونی وادی کی سبز آنکھیں ہیں، نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی۔ جھرنے اس کی آوازیں ہیں، سر والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر ڈھونڈتے ہیں۔ ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے 2 بچے کشمیری بولے، حسن کے بند دریچے کھولے۔ برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی، جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی، جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور حنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں۔ خوشبو کے ہلکورے لیتے گرما گرم اور خستہ یہ کشمیری کلچے، تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبودار نوالے بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں، دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں۔ جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ کنبے
अपनी भेड़ों के झुरमुट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती, शाह बलूद की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था, खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हफ्ताई के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त टीवी न्यूज़ पर।
پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔